नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। भाषा पर विवाद को लेकर बोले उपराष्ट्रपति, भाषा को समृद्ध करना चाहिए, ये बड़ा बयान दिया है और भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए। वेंकैया नायडू ने ये बयान दिया है, तो उपराष्ट्रपति का ये बयान आया है। भाषा पर विवाद को लेकर के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए। Indian language is very rich. So we must always feel, and I feel that we must promote our mother tongue. Mother tongue, motherland, they are very important. Mother who has given you beautiful birth, you should never forget her. And the native place to which you belong to, you must do something to the place where you were born. And the mother tongue, the language that has come from mother's womb, the Tamil, the Telugu, the Kannada, the Malayali, Marathi, Assami, Punjabi, Bhojpuri, there are so many languages. We must promote, propagate, and make them prosper in our own way. Because I always feel mother tongue is like your eyesight. The other language is like spectacles. If you have eyesight, spectacles will work. If you don't have eyesight, even if you wear ribbon, zuban se kuch aayega nahi. This has to be kept in mind. My suggestion to all the youngsters is, please promote mother tongue. Speak in mother tongue at home. We should not oppose any language, but we must support our language first. So my suggestion is, and people indulge in controversies, I say, no imposition of any language. चीन से चुनौतियों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हमने गुटनिरपेक्षता नीति को बरकरार रखा है। तो सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। So my message to you today is that diplomacy is not just about bridging positions through wordsmithing. It is equally about bridging societies through projects. It is about connectivity. It is about contact, it is about cooperation. I have today the privilege of both sharing some big picture thoughts on what regional cooperation has to offer, as well as detailing activities that make it possible. It is only fitting that I do so in Guwahati, in the presence of the Chief Minister. The participation of my Bangladeshi counterpart only highlights the indispensable role of his nation as a partner in this regard. Equally relevant is the presence of ASEAN ambassadors with us. They too should, I hope, take away from this meeting a good sense of what all of this means to our future. And the presence of our Japanese colleagues brings out the catalytic role that our Quad partner can play. So my आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र में रैली को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में अपनी चुनावी मुहिम का आगाज किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि मुझे मौका दो, मैं हरियाणा के सभी स्कूलों में सुधार करूंगा। रैली के दौरान उन्होंने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया। रैली के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मेरे को सबसे अच्छा तब लगता है जब लोग मेरे को हरियाणा का लाल बोलते हैं। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि मां के समान होती है। मां का कर्जा आदमी 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। जन्मभूमि का कर्जा आदमी 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। आज मुझे बेहद खुशी है अपनी जन्मभूमि में, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में आज यहां पे आपके बीच में आके सबसे पहले अभी बता रहे थे कि कल तूफान आया था। यह शुभ संकेत है। कह रहे हैं
बता रहे हैं तूफान पंजाब से आया था, बता रहे हैं तूफान दिल्ली से आया था, तो हरियाणा में तूफान आने वाला है और बड़ा तूफान आने वाला है। और जब ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है तो तूफान ही आता है। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी तो तूफान से घबराने की बात नहीं है, बड़ा शुभ लक्षण है कि कल तूफान आया था। तो दोस्तों, त्रेता युग में रामचंद्र जी ने रावण का घमंड तोड़ा था, द्वापर युग में कृष्ण जी ने कंस का घमंड तोड़ा था, और कल युग में किसानों ने भाजपाइयों का घमंड तोड़ा था। मैं सारे किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं। मेरे को सबसे अच्छा तब लगता है जब लोग मेरे को हरियाणा का लाल बोलते हैं। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि मां के समान होती है। मां का कर्जा आदमी 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। जन्मभूमि का यूपी में बजट सत्र शुरू होने के बाद से सियासी घमासान शुरू हो गया है। दर ज्ञानवापी को लेकर जमीयत उलेमा हिंद सम्मेलन कर रहा है। ऐसे तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता तोशी मेंडोला ने यूपी सरकार में राज्य मंत्री सुनील भराला से खास बातचीत की। यूपी की योगी सरकार में राज्यसभा चुनाव और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। मेरे साथ बात करने के लिए भाजपा से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुनील भराला साहब मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही हैं, बड़े बड़े नाम हैं, दिनेश शर्मा जी, श्रीकांत शर्मा, क्या तय हुआ है अभी तक? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा निर्णय होता है और केंद्रीय नेतृत्व जो है पार्टी के हित को लेकर के वो किसको बनाएंगे, अभी किसकी घोषणा होगी, ये सब गर्भ में है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बात करते हैं। 57 सीटों पे चुनाव होने हैं। यूपी की 11 सीटें हैं, 7 आप लोगों के खाते में जा रही है। क्या तैयारी है, क्या नाम है, कुछ बताएं। 7 नहीं 8 हमारे खाते में जाएगी। 8 सीट पर हमारे विजय होंगे प्रत्याशी। और भारतीय जनता पार्टी अभी जल्द ही इसकी रात तक कर दे या कल तक कर दे तो नेतृत्व इसके नाम भी घोषणा जल्द करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास जो अपने नामों पर चर्चा करी होगी तो उसकी घोषणा भी उन्हें करनी है। किस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलेगी इस काम की, तो वो नेतृत्व को जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी में बेचैन होने के लिए कार्यकर्ता नहीं बनता। कार्यकर्ता सबसे बड़ा पद भारतीय जनता पार्टी में है। तो हम सब कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता पे कोई दायित्व आएगा तो उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। जो दायित्व मिलता है पार्टी का उसका निर्वहन करना चाहिए। जो मुसलमान हैं, विशेष समुदाय है, उनके लिए ना आप कुछ काम कर रहे हैं। कुतुब मीनार की बात कर लेते हैं, काशी विश्वनाथ की बात कर लेते हैं, ज्ञानव्यापी की बात कर लेते हैं, अब हर जगह से तो आप शिवलिंग निकाल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतवर्ष जो है वो हमारा ऋषियों का देश है। हमारे देवी देवताओं का और भगवानों का यहाँ वास होता है। आप देखते होंगे कि सनातन हिंदू तो वैसे तो 33,000 करोड़ की बात होती है कि हमारे हिंदू देवी देवता 33,000 करोड़ 3300 होंगे, तो इससे तो कम हो ही नहीं सकते। तो पृथ्वी पर जो हमारे इस देश में जो बात प्रचलित है और सत्य है कि इस देश में दूध की गंगा बहती है, ये देवभूमि है भारत। बोल रहे हैं आप इनसे कि आप अल्पसंख्यक को नजरअंदाज कर देंगे? नजरअंदाज नहीं करने। जो पूर्व काल के अंदर जिस प्रकार से यहाँ औरंगजेब और बाबर ने मुगलों के समय में यहाँ जुल्म ढाए गए हैं और यहाँ हमारे हिंदू तीर्थों पर कब्जा करके उनको तोड़ा गया, उनको गिराया गया और उनके स्थान पर अपने तीर्थ बनाने की कोशिश की गई है। आज वे सब जो है प्रचलित हो रहे हैं अपने आप ही। ये नौबत क्यों आई है अभी? देखिए, जमीयत उलेमा का जो कार्यक्रम है, उनके जो प्रचारक हैं, काजी हैं, उनके जो वे पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं,
वो उनसे ही पूछना पड़ेगा कि वो करने क्या जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्र हित में काम करने का एक मिशन होता है और उस मिशन पर हम काम करते हैं। जमीयत को क्या करना है वो उनके उलेमा ही बता पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ आप सुनील भराला को सुन रहे थे, जो बता रहे हैं कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा को लेकर चीज़ें यहाँ पर देखिए साफ हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। और इसी के साथ जमीयत उलेमाए हिंद बैठक करने वाला है, लेकिन ये अपने ही तेवर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि सनातन धर्म कितना पुराना है और किस तरीके से देश में चल रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ ओशी मंदोला, FM न्यूज़, नई दिल्ली। उलेमाए हिंद की बैठक में आखिरी दिन ज्ञानव्यापी मथुरा विवाद से लेकर कॉमन सिविल कोड पर प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान मौलाना महमूद मदनी ने जलसे में मौजूद लोगों से सब्र करने के लिए कहा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये मुल्क हमारा है और हम इसे बचाएंगे। किसी को अगर हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं है तो कहीं और चले जाओ। हमको मौका मिला था पाकिस्तान जाने का, लेकिन हम नहीं गए। बात बात पर पाकिस्तान भेजने वाले खुद पाकिस्तान चले जाएं। उन्होंने एक किस्से का जिक्र करते हुए कहा, 2014 में सीबीआई ने मेरे खिलाफ केस किया। मैंने 5 साल से ज्यादा केस लड़ा। चैनल की डिबेट में मुझसे सवाल किए गए। मैंने कहा मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, अदालत ने मुझे फायदा मिला है। लेकिन यूपी में सरकार आते ही एक को रेप केस में भेज दिया गया। मीडिया में चला कि मदनी रेप करते पकड़े गए। इसलिए बता रहा हूं कि सब्र करना किसे कहते हैं। मुल्क की आज़ादी से पहले और मुल्क की आज़ादी के बाद मुख्तलिफ मुश्किलात और मसाइल की ज़िंदगी रही है, लेकिन मैं आप हज़रात के सामने इस बात को रखना ज़रूरी समझता हूँ कि उन हज़रात ने जिनको अल्लाह ने बड़ी बसीरत अता फरमाई थी, हमारे वो अकाबिर जिन्होंने कैद-ओ-बंद की मुसीबतों को हंसते खेलते बर्दाश्त किया था, मुल्क की आज़ादी के बाद जिन मसाइल से मुस्लिम अक़लियत दो-चार हुई, उन मसाइल का मुकाबला करने में वो लोग कभी सड़कों पर नहीं उतरे। आप उनकी जिंदगी को देख लीजिए। मुझे खूब याद है कि मुल्क की आज़ादी के बाद इसी हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद का मसला उठा। हमारे अकाबिर रहमहुल्लाह जिनकी जिंदगी मुजाहिदाना जिंदगी थी, हथेली पर जान रखकर मैदान अमल में काम करने वाले लोग थे, तो सड़कों पर नहीं उतरे। यहाँ देवबंद में बकरीद सुबह को होने वाली है, रात में फोर्स आई और उस जमाने में गाय ज़बह की जाती थी। यूपी में एक बार फिर से 11 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया। देवरिया के पुलिस अधीक्षक श्रीपति मिश्रा को डीआईजी बनने के बाद पीएससी मुख्यालय लखनऊ भेजा गया, जबकि बुलंदशहर के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह को वाराणसी कमिश्नरेट में एसीपी बनाया गया है। वहीं रायबरेली पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार को अब बुलंदशहर के एसएसपी बनाए गए हैं। इसके अलावा अंबेडकर नगर के पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी को रायबरेली एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कानपुर आउटर के पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा का भी तबादला कर दिया गया। अब उनको अंबेडकर नगर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं डीजीपी मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक कार्मिक तेज स्वरूप सिंह को कानपुर आउटर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, जबकि कानपुर कमिश्नरेट के डीसीपी संकल्प शर्मा को देवरिया का एसपी बनाया गया। मुसनाक के लार्जंग में तारा एयर का लापता हुआ विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस खराब मौसम के कारण राहत
उद्धार का काम हेलीकॉप्टर से नहीं हो पा रहा है, लेकिन सेना और पुलिस की टीम को दुर्घटना स्थल भेजा गया है। इससे पहले जोमसोम के पास एक इलाके में आग की लपटें भी दिखाई दी थी। वहीं जोमसोम एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर के धमकाने की आवाज भी सुनाई दी थी। आपको बता दें कि इस विमान में चालक दल 4 भारतीय और 3 जापानी नागरिकों समेत कुल 22 यात्री सवार थे। इस विमान ने पोखरा से जोमसोम के लिए उड़ान भरी थी। इसके बाद में एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इसका संपर्क टूट गया और तारा एयर के मुताबिक विमान में चालक दल समेत कुल 22 यात्री सवार थे। इनमें से 13 नेपाली और 4 भारतीय, इसके साथ ही 2 जापानी नागरिक बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की। इस रेडियो कार्यक्रम का 89वां एपिसोड था। जो पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ये क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्व से ऊपर उठकर समाज की सेवा का मंत्र, सेल्फ फॉर सोसाइटी का मंत्र हमारे संस्कारों का हिस्सा है। हमारे देश में अनगिनत लोग इस मंत्र को अपना जीवन ध्येय बनाए हुए हैं। मुझे आंध्र प्रदेश में मरकापुरम में रहने वाले एक साथी राम भूपाल रेड्डी जी के बारे में जानकारी मिली। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राम भूपाल रेड्डी जी ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली अपनी सारी कमाई बेटियों की शिक्षा के लिए दान कर दी है। उन्होंने करीब करीब 100 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए और उसमें अपने 25 लाख से ज्यादा रुपए जमा करवा दिए। ऐसे ही सेवा का एक और उदाहरण यूपी में आगरा के कचौरे गांव का है। काफी साल से इस गांव में मीठे पानी की किल्लत थी। इस बीच गांव के एक किसान कुंवर सिंह को गांव से 6-7 किलोमीटर दूर अपने खेत में मीठा पानी मिल गया। ये उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। उन्होंने सोचा, क्यों न इस पानी से बाकी सभी गांववासियों की भी सेवा की जाए। लेकिन खेत से गांव तक पानी ले जाने के लिए 30-32 लाख रुपए चाहिए थे। कुछ समय बाद कुंवर सिंह के छोटे भाई श्याम सिंह सेना से रिटायर होकर गांव आए तो उन्हें ये बात पता चली। उन्होंने रिटायरमेंट पर मिली अपनी सारी धनराशि इस काम के लिए सौंप दी और खेत से गांव तक पाइपलाइन बिछाकर गांव वालों के लिए मीठा पानी पहुंचाया। अगर लगन हो, अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीरता हो, तो एक व्यक्ति भी कैसे पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है, ये प्रयास इसकी बड़ी प्रेरणा है। लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्य समिति संबोधित की। आपको सुनाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष के इन सफलतम कार्यकाल के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय कैबिनेट का, अपने सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भाइयों बहनों, 5 वर्ष पहले प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास किया था और इन 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश ने जिस यात्रा को आगे बढ़ाया आप सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के सामने जो पिछली सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए एक अविश्वास की स्थिति पैदा की थी, प्रदेश के बारे में जो धारणाएं देश और दुनिया में बन चुकी थी, इन 5 वर्षों में भले ही 3 वर्ष ही हमें कार्य करने को मिले हों, 2 वर्ष इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के प्रबंधन और उससे प्रत्येक नागरिक को राहत मिल सके, इस दिशा में जो प्रयास केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के आगे बढ़ाए थे, इसमें ज्यादा समय हमारा प्रबंधन और इससे आम नागरिक को राहत मिल सके, इसमें ज्यादा समय हम लोगों को लगाना पड़ा। लेकिन उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश
2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की क्या धारणा थी, राजनीतिक दलों के बारे में, सरकारों के बारे में, उत्तर प्रदेश की जनता की क्या धारणा थी, और जब 2022 में विधानसभा के चुनाव सकुशल संपन्न होने के बाद फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनी है, उस समय तक जनता के मन में राजनीतिक दल और सरकारों के बारे में क्या धारणा होनी चाहिए, यह भी आप सबके साथ। भारत में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार 2000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में देश में कुल 2828 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जो कि पिछले कुछ दिनों के मामलों से काफी ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। एक्टिव केसेस में भी लगातार अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब कोरोना के कुल एक्टिव मामले 17,087 बताए जा रहे हैं, तो यानी कि कोरोना का जो ग्राफ है वो अब दिन पर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूपी विधानसभा का बजट सत्र होने के बाद से पक्ष विपक्ष में तकरार देखने को मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर हमलावर रहे हैं। इस पर हमारी संवाददाता तोशी मेंडोला ने पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से खास बातचीत की। कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा मंच पर तेवर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी मौजूद है। सर, जिस तरीके से योगी जी लगातार उनके तेवर साफ दिखाई दे रहे हैं, तहसील गिरवी रख दी जाती है पिछली सरकारों में और उद्योग बनाया जा रहा था, जिस तरीके से पोस्टिंग को लेकर वो लगातार ऐसे आरोप लगाते हैं विपक्षियों पर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो जनता ने अपना अभिमत दे दिया है, कौन क्या करता था, किसने किस प्रकार से लूटपाट करी, किसने किस प्रकार से आम जनता को प्रताड़ित किया, और जिसने संविधान का उल्लंघन करते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं को तोड़ने का काम किया, जनता ने उसको दंड दिया है। पक्ष का तो सुपड़ा साफ हो चुका है। विधान परिषद में भी आप जाकर देखिए, विधानसभा के बाद तो अब विपक्ष शून्यता की तरफ बढ़ चुका है। इसलिए अब वो अनर्गल आरोपों के अलावा, शब्द बाण छोड़ने के अलावा विपक्ष के पास कुछ और नहीं बचा है। लग रही हैं कि चाचा शिवपाल यादव भाजपा को ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन अभी तक कुछ कंक्लूजन नहीं आया। अब तो योगी जी ने भी चाचा कह दिया। बहस चल रही है, चाचा किसके हैं, योगी जी के कि अखिलेश यादव के? नहीं है, योगी जी सभी बड़ों को सम्मान हमेशा देते हैं और सम्मानजनक शब्द है चाचा। चाचा कोई अनापत्ति वाला शब्द थोड़ी है। और जब बहस चलती है और नेता प्रतिपक्ष अगर किसी को चाचा के संबोधन से कर रहे हैं, तो नेता सदन चाचा कह दे तो कौन कसूर है? कसूर तो तब है कि जब लोगों के पिताजी को लेकर लोग टिप्पणी करने लगे, तब ये अपराध बनता है, तब ये आपत्ति बनती है। शिवपाल यादव की ज्वाइनिंग कब है भाजपा में? नहीं, ऐसा शिवपाल जी के ज्वाइनिंग होना ना होना ये ऐसे विषय हैं जिन पर निर्णय राष्ट्रीय स्तर के लोग ही ले सकते हैं या उसका जवाब दे सकते हैं। हम लोग ऐसे लोगों के सामने तो केवल आप लोग चर्चा कर रहे हैं, वही सुनाई पड़ रहा है। बाकी दोनों वो बड़े नेता हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं से ही अगर कोई बात करना हो तो होगी। हम लोग के संदर्भ में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पुरानी पार्टी जिसमें उन्होंने एक लंबा वक्त गुजारा है, छोड़कर सपा से समर्थन लेकर नॉमिनेशन भर दिया है। अब बीजेपी की क्या अभी तैयारी है इस चीज को लेकर? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो एक डूबता हुआ जहाज है, एक ऐतिहासिक जर्जर इमारत है जो लोकसभा चुनाव के पहले कभी भी ढह सकती है। और रहा सपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हिंद ने 2 दिवसीय बैठक आयोजित करी है, जिसमें वो यूसीसी के बारे में बात करने वाले हैं। कुतुब मीनार में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं ज्ञान व्यापी को लेकर, तो उनका ऐसा नज़रिया है कि टारगेट किया जा रहा है विशेष समुदाय को। ये वक्त आ चुका है कि अब वो बैठकें कर रहे हैं। 4000 से ज़्यादा मौलाना इस बैठक में शामिल होंगे। देखिए, अगर विश्लेषण करिए तो पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। योगी राज में विगत 5 वर्षों से ऊपर हो गए, एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ।
संगठन जो है वो यूसीसी को लेकर देखिए लगातार विरोध भी कर रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ना हो इसको लेकर। अब चूंकि उत्तराखंड अब कोई भी धार्मिक उन्माद को फैलाने वाले कट्टरपंथियों का कोई स्थान अब उत्तर प्रदेश में नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून का उल्लंघन करने वाले अब उनका कोई स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान विशेष समुदाय बिल्कुल सुरक्षित है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि जमीयत उलेमा हिंद की बैठक होने वाली है, इसको लेकर वो पूरे देश में बैठकें करने वाले हैं। 4000 से ज्यादा मौलाना इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ तोशी मंदोला, नई दिल्ली, FM न्यूज की नजर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।